Hello, all of you. We like to start the second chapter of your industrial law trade union. I'm explaining in some last lecture, we started the next lecture chapter. In this chapter, we are studying the introduction concept, objective, application, administration, authorities of trade union. Then the main concepts are registration of trade union, how can become a member of a trade union, the legal status of registration of trade union finance and for funds, change of name of your union, your parties, etc. Okay, let's start the introduction of trade union. A trade union is a complex, dynamic social institution become in its economic, social, political, psychological aspect. It is a flexible in nature so that it can be changed with the change in the environment. Trade union is a form to protect and improve the economic, social, political and vocational interest in working and also the strength and beginning power of member. इन शॉर्ट इसके अलावा क्या बोलने की कोशिश किया है इन चार लाइन में कि एक यूनियन है, एक कमेटी है, विच इज कैसे है डायनेमिक इन नेचर है बिकॉज द चेंज इन नेचर एज पर द चेंज ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट या इकोनॉमिकल नेचर and this economical nature are affected on the environment. The trade union is formed to protect, improve the economic, social societies and politics. अब ये पॉलिटिकल क्यों है क्योंकि इसमें जो यूनियन है तो कमेटी मेंबर्स होंगे देन द कमेटी चेयर द हेड चेयर इज देयर एंड पॉलिटिशियन एंड लोकेशंस आर interest to their the work. Okay, then the objectives are trade unions to ensure security of workers. This involves the continued employment and workers prevent the relative retrenchment, layoff or the lack of restriction application fire of dismission discharge and VRS. सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स क्यों है कि अगर कोई जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी की है लेकआउट्स क्या होता है या लेआउट्स क्या होता है उसके अंदर जो रूल्स बनाए जाते हैं या जैसे कमेटी बिठाई जाती है और लेबर्स के लॉ को हेल्प की जाती है लेबर लॉस को या फिर लेबर्स की हेल्प की जाती है इन टाइम ऑफ वर्क इंसेंट ये जो सिक्योरिटी है ये कौन प्रोवाइड करता है तो इनडायरेक्टली द यूनियन आर प्रोवाइडेड इन दिस यूनियंस कॉल्ड लेबर लॉ सॉरी ट्रेड यूनियन ओके then obtaining the better economic returns. Better economics return, this involve the wages hike at a predict intervalues. Bonus of higher rate, other admissible allowance, special contain the transport facilities and all. It means I say जो तुम्हें जरूरी है time of work, they are the necessary, but not providing you by any firm. It can be help you by any organization can't be help you in any organization, then that time this union are provide you by strike and etc. Okay, secure power of influence management. This involves the worker particular in management decision making roles and union. अभी किसमें इन्वॉल्व होती है कि मैनेजमेंट की जो डिसीजन रहती है उसके अंदर वो स्ट्राइक्स वगैरह करके उसमें एक इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट ला सकते हैं. सिक्योर पावर फॉर द इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट इट्स सिक्योर क्यों बोला हुआ है कि हर जगह लेबर एंड वर्कर्स की तरफ से जो सिक्योरिटी होनी चाहिए इन टाइम ऑफ मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन दे आर अप्लाई. ओके, देन इसके ऊपर से जो पॉइंट बना है एप्लीकेबल. Applicable. The act is extended to the who are the Indian and applicable to all kind of union worker and association of employees. का यूज होगा ये एक्ट ऑल वर्कर्स के ऊपर और एम्प्लॉयज के ऊपर यानी ऑल टाइप ऑफ वर्कर वर्क करने वाले which aims to regularize the labor management relation. जिसका एम क्या होता है लेबर को मैनेज करना और इन रिलेशन जनरेट करना विद एडमिनिस्ट्रेशन. ओके, एज पर द सेक्शन 2H ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट, a trade union is a combination whether the temporary or permanent form of regulator the relation not only between the workman and workman between the employer based on the trade union may be the form imposing the restriction and condition of any trade union business. एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी क्या होती है इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी यानी एडमिनिस्ट्रेशन का कितना अलाउ है द एक्ट ऑफ सेंट्रल enhancement but it is the administration by large by state government trade union whose objectives are not restricted to no one state are thus subject to central government.
The state government shall be appointed the registrar of trade union assistant by additional or duty of registration each state. Hmm? The state government also make regulation informs the provision act. अब देखो ये इसकी अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन कितना बड़ा है, तो नेशनलाइज लेवल का है, जिसमें उस स्टेट का जो रहेगा वो गवर्नरशिप रहेगा. The head is governor and is appointed by this state, and remaining state the partner are deputy governor as a member of this central एज अ सेंट्रल लेवल. ओके, इट मीन्स एक नेशनल लेवल यूनियन बनती है और उसके अंदर फॉर एग्जांपल द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का जो पर्सन रहेगा इज अ गवर्नर ऑफ दिस यूनियन, एंड रिमेनिंग स्टेट के जो मेंबर रहेंगे फॉर दिस ट्रेड दे आर द डेपुटी और को पार्टनर. ओके. Then the definition of trade union. The definition of trade union is the trade union is a combination of persons, a group unity, temporary of permanent, primarily of the purpose, the regulation of between the workers and employees. Between the work are imposing restrictions, condition and conducting trade by Union Act 1926. A trade union is an organization actually collective to seek, protect or promote their work. अब रजिस्ट्रेशन कैसा होता है? रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन. द फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन. फर्स्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन. पहले अपॉइंटमेंट ली जाएगी अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट. द अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट शैल बी अपॉइंटेड अ पर्सन टू रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन फॉर ईच स्टेट. एक एक स्टेट से एक एक को अपॉइंट किया जाता है. जैसे मैंने बोला कि मेन जो रहेगा उस स्टेट का गवर्नर, जिस स्टेट की रहेगी उस स्टेट का रहेगा वो गवर्नर, रिमेनिंग डेप्यूटी गवर्नर. ओके. The appointment government may appointed as additional deputy registers of trade union in this the purpose of existing discharge under the superintendent direction of the register. Mode of registration में क्या बोला हुआ है? The first mode is any 7 or more member of trade union may. कैसे होना चाहिए? कम से कम 7 होना चाहिए या 7 से ज्यादा. By subscribe their name of the rules of trade union and otherwise complying with the provision of act reactive registration. उनको कैसा करना चाहिए कि ट्रेड यूनियन के रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए या फिर उनको कंप्लाइन करना चाहिए कि हमें नहीं जमना है. और इस कंप्लाइन में वो क्या करने वाले कि एक्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करेंगे. अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेड यूनियन एंड अंडर दिस act. When where the application has been made, the registration of trade union such as application shall not be demanded or become invalid merely by reason of the fact that any time after date. हाँ, अब ये बात बहुत गहरी बोला हुआ है कि जो एप्लीकेशन की टाइम ऑफ दिए रहते कि नेक्स्ट इन 15 डेज में ये पेपर जमा करना है, नेक्स्ट 30 डेज सबमिटेड द सम पेपर्स एंड ऑल, तो उन डेट्स को कवरलैप करना है और उन डेट्स को कवर करना है, उन डेट्स को कवर करके कैपलैप्स करना है. Application for registration. Every application for registration of trade union shall be made to the registration and shall be permitted by the company for rule of trade union and statement of following particulars. First, the name of occupation and address of member making of application, the name of trade union and address of its head office. कहाँ होगा वो head office बताना है. Title, name, age, address, occupation and office barriers of the trade union concept. ये जो trade union बनाई जा रही है उसका main topic क्या है, title क्या है, names क्या है, किन लोगों से involves है, उनकी age क्या है, एड्रेसेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, एग्जैक्ट काम क्या कर रहे हैं, एंड ऑफिस में उनको बैरियर्स क्या है. ओके, वेयर द ट्रेड यूनियन हैज बीन द एग्जिस्टिंग फॉर मोर देन 1 year before the making of application or it is registration, this shall be delivered to the registration together with the application of general statement and assets and liabilities. It means तुम्हें पूरा टैलियूट्स करना पड़ेगा. सीए से एक एप्लॉयमेंट अपॉइंटमेंट विद प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट बना के लेनी होगी एंड उसका आंसर देना होगा. देन द प्रोविजन फॉर द कंटेनमेंट ऑफ रूल्स एंड ट्रेड. अब उसके बाद कंटेनमेंट एंड रूल के अंदर जाना है तो ट्रेड यूनियन शैल बी एंटायर रजिस्ट्रेशन अंडर दिस ट्रेड यूनियन एक्ट अनलेस द एग्जीक्यूटिव therefore the constitution of according the provision of this act. Power of call father in particular. Okay, then registration का जो मेन पॉइंट है कि इस सब पेपर्स जमा होने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है, being satisfied and that the trade union has been complying with all requirement of the act regarding the registration shall be registered and the trade union be entire in registration to the meant such as form as may be perishable
and particular relation to the trade union content. It is the statement accompanied in the application for registration. Then certificate of registration देखा जाएगा. उसके बाद certificate of registration यानी तुम्हारा registration done हो गया. The registration and a trade union under the section Act shall be issue of certification of registration specified from the which shall be concluded evidence that trade union has been registered under registration trade union act. Okay. देन कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. अगर रजिस्ट्रेशन किए तो कैंसिलेशन कैसा करें, तो रिवर्स है, उन्हें फिर से उतनी वर्क करने पड़ेगी जितने करने. फॉर एग्जांपल द कैंसिल रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन मे बी द विड्रॉ और कैंसिल बाय द रजिस्ट्रेशन पार्टी. On the application, the trade union be verified in such manner may be perishable. If it is the registration satisfied that certificate has been obtained, fraud, mistakes or union or case existing. यानी तुम्हें इसमें फ्रॉड होना चाहिए, मिस्टेक होना चाहिए या केस एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो ये वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है. ओके. देन रजिस्टर ऑफिस का होगा और इनकॉर्पोरेट दैट आर नॉट पॉइंट ऑफ योर एक्सप्लेनेशन. द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन. रोल क्या रहते हैं, काम क्या करते हैं वो लोग. द फर्स्ट रोल इज इम्प्रूव वर्किंग एंड लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स. लिविंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स एंड इम्प्रूव वर्किंग कंडीशन. जो वर्कर्स की मेन कंडीशन है उनको इम्प्रूव करते टू सिक्योर फेयर वेजेस ऑफ देमसेल्फ. फेयर वेजेस यानी जो वेजेस है, सिक्योरिटी है वो जनरेट कर. टू प्रमोट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलफेयर. वेलफेयर में कलेक्शन लाते, इम्पोर्ट करते, इंडिविजुअल को रहे या कलेक्टिव ग्रुप रहा, उनमें जो वेलफेयर होना चाहिए, सोसाइटी वेलफेयर या फिर वर्किंग वेलफेयर, प्रोमोटल वेलफेयर, उनको एक जनरेट करते हैं. To subrogate the security to trains employ the condition of services और सर्विसेज को प्रोवाइड करना, जो एम्प्लॉयज को मिलने चाहिए उसको प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड करने की हेल्प करते हैं. To provisions the cultural reactions facilities to promote identify the interest of workers with their industry. identify क्या करते हैं, इंटरेस्ट जनरेट करते हैं वर्कर्स के अंदर कि वो काम करने के लिए वैसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं कि यह काम करना चाहिए. टू कोऑपरेट एंड फैसिलिटीज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड एक्सप्लेन द वर्कर्स प्रॉब्लम एंड एडवांटेज. टू डेवलप सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इंडस्ट्री. उसके बाद कम्युनिटी अमंग्स द टर्म्स एंड मेंबर्स. To fulfill the certain social responsibilities such as integration, inclusion, economic, political, and local community activity, etc. To acquire the control to industry by workers. To develop self-confidence and sense. In short, ऐसे काम करते हैं जिससे welfare generate हो with employee and workers और उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, एक सोशल एनवायरनमेंट मिले, जिस एनवायरनमेंट में वो इजीली वर्क कर सकते हैं. ओके. टू प्रमोट द मोरल ऑफ वर्कर्स, टू प्रमोट द नेशनल इंटीग्रेशन. Then the next point comes here. How can become a member? Member कैसे बन सकते हैं? तो in simple एक लाइन में उसने बताया हुआ है. Any person who has been attained the age of 15 years is eligible to become a member. अब अपने जॉब करने की उम्र क्या है, 18 प्लस. उससे पहले काम करेंगे तो बच्चे काम कर रहे हैं इससे काउंट होता है और उस पे बाल उद्गार का ये लग सकता है, या जॉब पे बच्चे रखे इसका केस हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन की एज है वो 15 है, ये भी है, यानी दोनों तरफ से ट्वाइस गेम खेला हुआ है यहाँ पे इन लीगलिटीज. ओके. देन अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिस बैरियर्स. At least 50% of office barriers of unions should be actually engaged of employee in the industry which is the trade union concurrent, and the remaining 50% or less can be outsider. अब जो मेंबर्स रहेंगे जैसे 7 हो या 5 हो, तो उसमें से 50% मेंबर, जैसे 5 रहा तो मिनिमम 3 और क्या रहने चाहिए कि वो जो यूनियन ऑफिस बैरियर्स के लिए बने उधर के होने चाहिए, 2 आउटसाइडर होने चाहिए. अगर सब आउटसाइडर रहे जिसको इंटरनली क्या हो रहा है पता ही नहीं है, तो उस ट्रेड यूनियन का कोई लेवल नहीं रहेगी या कोई अथॉरिटिकल प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और अटेंडिंग एज 18 प्लस होनी चाहिए. Then legal status of registration trade union. A registration trade union is a body corporation with a perpetual succession and the common seal. It can be acquire, wholesale or transfer any movable, immovable property and be a party to contract. Registration trade union can sue and be sued in its own name. No civil suit
or other legal proceeds can be invited against the state trade union. Okay. इन शॉर्ट क्या बोला हुआ है? एक ट्रेड यूनियन एक रजिस्टर बॉडी है. अब अगर रजिस्टर बॉडी है तो कॉर्पोरेट खुद कर सकती है एज अ लीगल मेंबर. तो सिविल सूट और द अदर लीगल प्रोसीजर कैन बी इमीडिएट अगेंस्ट द स्ट्रेटेजी, यानी कुछ वहाँ गड़बड़ हुई तो उसका रजिस्ट्रेशन होने की वजह से सम लीगल इश्यूज आर देयर, और उस लीगल इश्यूज के बेस पे तुम सिविल कोर्ट में उसके खिलाफ, उस यूनियन के खिलाफ केसेस कर सकते हो, एग्रीमेंट कर सकते हो, और उन एग्रीमेंट के बेस पे तुम तुम्हारा करियर बना सकते हो. इट मीन द फाइल ऑफ सूट करना है, केस कर सकते हो, केस को सॉर्ट आउट कर सकते हो. तुम्हें अगर उसमें कुछ फंसाया जा रहा है तो फंसाने के वाले मेंबर इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हो एंड ऑल. देन ट्रेड यूनियन फाइनेंस एंड फ्रॉड्स, द रेट ऑफ सब. अब इसके ऊपर देखो उसने बोला हुआ है द रेट ऑफ सबरेशन ऑफ यूनियन मेंबर्स. तो सबसे पहले उनका क्या है, सेक्शन 6 में बोला हुआ है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 प्रोवाइडिंग दैट द पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शंस ऑफ मेंबर्स शैल नॉट बी लेस देन ₹1 पर एनम और रूल वर्कर. यानी ये यूनियन चलने के लिए जो पैसे लगने वाले वो कैसा किया जाता है, उनके जो मेंबर रहते हैं उनसे मिनिमम कॉस्ट ली जाती है, और उसकी कॉस्ट के लेस देन कितनी है, कम से कम ₹1 तो होना जरूरी है ईच मेंबर पर एनम. साल का ₹1, साल का ₹1 बोला हुआ है. ओके. ₹3 पर एनम फॉर वर्कर इन द अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर. और अगर अनरिकॉग्नाइज्ड सेक्टर यानी नॉन लिस्टिंग कंपनी है, छोटे है, कभी भी बंद हो सकते हैं, तो उन लोगों से ₹3 लेना है. ₹12 पर एनम फॉर वर्कर इन अदर केस. और कोई दूसरा ही है जो ऐसे ही ज्वाइंट हुआ है तो उससे जब तक कोई लिस्टिंग कंपनी या कोई अनऑर्गेनाइज में नहीं जाता है तब तक उससे कितना लेना है, ₹12 लेना है. ओके. द एफर्ट क्लॉज डू नॉट बी प्रोवाइड मिनिमम मेंबरशिप फीस एंड सर्व एन अदर पर्पस to basic difficulty trade union and is above the realized monthly subscription from the member. या क्या है सबसे बड़ा डिस्क्रिप्शन कि मंथली हम ये ₹1 ₹2 नहीं ले रहे, ईयरली ले रहे. तो ईयर का एक बंदे से ₹1 लेंगे तो उससे क्या चलने वाला, ऑर्गेनाइजेशन चलेगी क्या, वो हमारे पास उतना पैसा रहेगा कि हम बिग अथॉरिटी ले सकते हैं, बिकॉज द फाइनेंशियल कैपिटल इज मस्ट. कैपिटल इज देयर देन अथॉरिटी इज देयर. Equally common is the participation of collection subscription from those who want to avail themselves in providing the being trade union member. These irregularities can be eradicated by providing the machinery and regulation realization of duty. अब वो फ्रॉड्स क्या होते हैं, तो जनरल फ्रॉड्स है. तो पहला क्या फ्रॉड है देखो, द पेमेंट ऑफ सैलरी, allowance and expenses office barriers and trade union. दूसरा क्या, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द ट्रेड यूनियन. देन द प्रोसीजर ऑफ डिफरेंट. अब ये छोटी छोटी बातें जैसे कि फेक बिल बनाना और वो रजिस्ट्रेशन में जमा करना. देन द प्रोसेक्शन ऑफ डिफेंस एंड लीगल प्रोसीजर एंड विच ट्रेड यूनियन any member thereof the party when such as the prosecution defense undertaking for the purpose of security and protection राइट ऑफ द ट्रेड यूनियन. जैसे कि वो स्ट्राइक वगैरह कर रहे हैं फॉर किसी के प्रोटेक्ट के लिए, तो उस टाइम पे उल्टे सुल्टे खर्चे करना खाने पीने के टाइम पे और पैसा उड़ा देना. द कंडक्टिंग ऑफ ट्रेड डिस्पैच ऑफ बिहाफ ऑफ द ट्रेड यूनियन एंड मेंबर देयरऑफ. कुछ भी डिस्पैच का, ट्रेड यूनियन का डिस्पैच कंडक्ट करना बिहाफ ऑफ ट्रेड यूनियन और उसको ट्रेड यूनियन के नाम पे बिल लगा देना. ऐसे बहुत से फ्रॉड्स है, हम ऑफलाइन में भी थोड़ी सी स्टडी करेंगे कि कैसे होते हैं. देन द उसके बाद यहाँ उसने बोला हुआ है पॉलिटिकल फ्रॉड्स. अब पॉलिटिकल यूनियन रहती है तो पॉलिटिकल फ्रॉड्स होना इट मस्ट as the maintaining the earlier trade union, the having the political affiliations, they are be often to complete the plug into the political sphere in order to show their strict law. Therefore, they cannot be kept itself away from the reality. It is view of this that section 16 of a parliament registration trade union is rise separate political fund for its member in furtherance of the objective of this maintaining the payment of expenses incurred. अब जब कॉमन ही फ्रॉड हो गए, जैसे एक्सपेंसेस पेमेंट करना, उसका रॉन्ग बिल दिखाना, इनडायरेक्टली कंडक्टिंग द पर्पस ऑफ कंडक्शन इलेक्शन मेंबर्स वगैरह उस वक्त लीगल इश्यूज वगैरह करना और फेक बिल बना के लाना. देन होल्डिंग एनी मीटिंग ऑफ डिस्टर्बेंस एंड लिटरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ऑफ सच एज कंडीशन एंड एक्सेट्रा. ओके.
देन उसके बाद और क्या हो सकता है कि इलेक्शन के वक्त सपोर्ट करना और सपोर्टिंग इन पॉलिटिकल मीटिंग्स लेना, काइंड ऑफ मीटिंग्स जनरेट करना एंड पॉलिटिकल लेक्चर लेना, जो कि ट्रेड यूनियन का रियल वर्क नहीं है, इट्स अ फ्रॉड एंड इट्स रिजल्ट टू improve the influence the member of, therefore the influence with the freedom and speech the amounting with rating provider. A new line of lobby is work, that pattern of engage and all. Okay, then the come next point and the last of points, some last points is that the cancellation of registration. The registration can be withdraw or cancel in trade union कब होगा, जब तुम्हें कोई फ्रॉड निकलेगा या मिस्टेक करेंगे, केस फाइल होंगे ऑन योर यूनियन एंड द रूल विच इज रिक्वायर्ड फॉर अंडर सेक्शन 6. ओके, द चेंज ऑफ नेम, यानी यूनियन का नेम अगर तुम्हें चेंज करना है फिर से, तो उसके लिए सिंपल कंसेप्ट है जो 12th में तुमने रीड की हुई है. द रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन मे बी चेंज द नेम एंड कंस्ट्रक्ट ऑफ एट लीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, यानी कम से कम 2/3 मेंबर्स ऑफ योर ऑल मेंबर्स की अथॉरिटी यस में होना चाहिए. वोटिंग राइट्स लिए जाएंगे और वोटिंग में दे आर सजेस्टेड या यस द चेंज नेम. The change of name shall be effected the right of obligation on trade union, a really legal procedure. अब इसका इफेक्ट क्या होगा कि नेम के हिसाब से तुम्हारे सब लीगलिटीज चेंज होंगे, दिस शैल इफेक्टेड ऑन योर फ्यूचर ओरिएंटेड. देन डिस्क्लोजर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड एमिलिगेशंस ऑफ ट्रेड यूनियन, ये दो पॉइंट है और हम ऑफली यूज करेंगे, जस्ट शॉर्ट पॉइंट है. एंड ऑब्लिगेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, के रजिस्ट्रेशन में क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं और उनके राइट्स, वी आर स्टडी ऑन नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. इन शॉर्ट ट्रेड यूनियन ये कंसेप्ट भी यहाँ खत्म हो रही है. स्मॉल चैप्टर था जो रिकवर किया गया अभी. देन द थर्ड चैप्टर, इट मीन्स the next chapter we are started in next lecture, and the concept is the Factorial Act, the Factorial Act 1948. This is started in next lecture. Thank you all of you.